Hello friends, welcome to my channel Learning Made Easy. Now I know your board exams are really nearing and so I have come up with this video of question paper, sample paper. I'll be explaining this sample paper to you. I'll explain the passage and I'll give you the answers to the MCQ questions, and however I can, as much as possible, I'm going to help you with the sample paper. Okay. Passage is something everybody, they're getting very scared and they're like, what to do, ma'am? It really confuses me. I don't know how to understand and things like that. I can understand. Actually, I don't know what passage is coming for you. So I can just solve this sample paper, this particular sample paper passage questions. Otherwise, whatever comes to you, it depends on your luck. I wish and pray that you get the easiest one, but always it happens is that one passage remains very easy and the other one becomes a little difficult. Just like in this sample paper also, we are going to find like that. Anyway, I'm going to start the explanation to this sample paper. Okay, so let's begin. Here you can see Khand A, the part 1, which has Apatit Gadyansh, that is unseen passage. Okay. Passages are of two types, seen passage and unseen. Unseen means it comes from outside, seen passage from your textbook. Okay, so this is unseen. Here is the first passage. I'm going to read it. This one is easy actually. Okay, so I'm starting. वर्तमान युग कंप्यूटर युग है. यदि भारत वर्ष पर नज़र दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है. So this is about computer. This passage is about computer. So it says Vartaman Yug. The present time is computer yug. It's a time of computer. यही भारत वर्ष पर नज़र दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे. If we just run our eyes over India today, the condition of India, we see that in every place, we don't have to just take India, I think in the entire world, there is no field that has no computer in it. Right? Everywhere you see a computer, or what we say today, a laptop, or everything of that sort where recordings are made. Bank, railway station, Hawaii adda means airport, डाक खाना पोस्ट ऑफिस, बड़े बड़े उद्योग कारखाने, big offices, व्यवसाय, हिसाब किताब, all the business accounts, रुपये गिनने तक की मशीनें. Okay, a machine that is used for counting रुपये, money, is also computerized. मशीनें कंप्यूटरीकृत यानी कि कंप्यूटराइज्ड होते हैं. अब भी ये कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है. इवन टुडे देयर इज ऑलवेज अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर. आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है. द कमिंग टाइम गिव्स अ हिंट ऑफ विस्तृत फैलाव, अ वेरी वास्ट स्प्रेड ऑफ कंप्यूटर. प्रश्न उठता है कि क्या कंप्यूटर आज की ज़रूरत है. द क्वेश्चन अराइजेस दैट इज़ कंप्यूटर रियली नेसेसरी टुडे. इसका उत्तर है कंप्यूटर जीवन की मूलभूत अनिवार्य वस्तु तो नहीं है, किंतु इसके बिना आज की दुनिया अधूरी जान पड़ती है. कंप्यूटर इज़ नॉट समथिंग दैट्स वेरी मूलभूत, ओके, अ वेरी वैल्यूबल, दैट विच इज़ रियली रिक्वायर्ड, अनिवार्य, वेरी इंपॉर्टेंट. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन आज की दुनिया, टुडेज वर्ल्ड इज़ अधूरी, इज़ इनकम्प्लीट विदाउट अ कंप्यूटर. आगे बढ़ते हैं. सांसारिक गतिविधियों, परिवहन, संचार उपकरण आदि का ऐसा विस्तार हो गया है कि उन्हें सुचारू रूप से चलाना अत्यंत कठिन होता जा रहा है. सो टुडे इफ यू सी इन द वर्ल्ड, वी सी द टेक्नोलॉजी, द ट्रांसपोर्ट, the everything you see, without the help of computers, even the facility or the working of such things have also become very difficult. Okay, अत्यंत कठिन, very difficult. पहले मनुष्य जीवन भर में अगर 100 लोगों के संपर्क में आता था तो आज वह 2000 लोगों के संपर्क में आता है. संपर्क यानी कि कॉन्टैक्ट. Earlier we used to have maybe maximum some 100 people we used to have a contact with. But today if we see at least 2000 यानी कि 2000 people in a day we are in contact. Right? Through phones and through laptops, maybe through Facebook or whatever social media. We have contact with many people in the world
in a day itself, maybe in an hour itself we contact many people, right? पहले दिन में 5-10 लोगों से मिलता था, तो आज 50-100 लोगों से मिलते हैं. Earlier in a day maybe we used to go and meet some 5 to 10 people. Okay, today we meet 50-100, 50 to 100 people in a day. पहले वह दिन में काम करता था, तो आज रातें भी व्यस्त रहती है. Earlier we used to work only during mornings, but today if we see, we work even during nights because we have laptops and things and facilities. See, earlier we don't have these facilities at home. Maybe in the place where we are working, we'll have a computer. So we work over there. We come home. We don't have a work. Apart from something that has to be used, a computer has to be used. But today, we work even after coming home because we have all those facilities at home as well. आज व्यक्ति के संपर्क बढ़ रहे हैं, व्यापार बढ़ रहे हैं, गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, साधन बढ़ रहे हैं. टुडे संपर्क बढ़ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स आर इंक्रीजिंग, व्यापार बिजनेस इज इंक्रीजिंग, गतिविधि टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंग, आकांक्षाएं आर विशेस, होप्स, एम्बिशंस आर इंक्रीजिंग, साधन बढ़ रहे हैं. एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग ऑन अ वेरी फास्ट पेस. इस अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है. सो दिस अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल पेस, स्पीड, okay, of things has made us has forced us to stick to computers or to use these computers in our daily life. कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है. The need for something is where the birth of a new technology comes. That's right. When you have a need for something, that is when the technology gets manufactured, right? When you need something. So आवश्यकता आविष्कार की, आविष्कार यानी कि इन्वेंशन की जननी होती है. इट्स अ बर्थ. इस आवश्यकता के ने अपने अनुसार निदान ढूंढ लिया है. कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित प्रणाली है जो कैसे भी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है. सो कंप्यूटर इज समथिंग विच एनी काइंड ऑफ अव्यवस्था, lack of facility can be converted into a facility with the help of a computer. हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है. In hesitation, especially we are human beings, wrong things happen from us, but it is computers which helps us. It becomes a god for us. क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकते ही आपकी समस्या हल कर सकती है. सो दे आर टेलिंग अबाउट द वर्क्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम, यू कैन टेल फ्रॉम द हाउ द अंपायर शोज सिग्नल्स अबाउट द क्रिकेट, फ्रॉम दैट वर्क टू लंबी लंबी गणनाएं, बिग बिग अकाउंट्स, एवरीथिंग पल के झपकने पर, यानी कि जस्ट यू ब्लिंक योर आइज एंड दीज थिंग्स आर हैपेंड विद इन सेकेंड्स इन कंप्यूटर. पहले इन कामों को करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाकर काम करते थे, एक भूल से घबराकर और अधिक हड़बड़ी करते थे. So earlier everything was done by human mind, human hands and human brain. So what happens, always we make mistakes, or most of the times we make mistakes. One mistake leads to another mistake and we create big mistakes. But today, since there is a computer which is which doesn't have this human mind, it has a computerized mind which sets everything perfect. परिणाम स्वरूप काम कम, as a result the workload has decreased, तनाव अधिक होता है. workload decreased but तनाव, loneliness has increased. that is there. अब कंप्यूटर की सहायता से काफ़ी सुविधा हो गई है, but with the facility of computer, a lot of suvidha, a lot of facility has happened in human life. So this one was very easy, right? I think you people can also just read and get the meaning of it, right? Okay, so let's look at its questions and its answers. I'll just discuss you with the options. Okay. वर्तमान युग, पहला क्वेश्चन. वर्तमान युग कंप्यूटर का युग क्यों है? we can read the option. So वर्तमान युग, today's time, why is it a computer time? That's a question. Answer. First option, कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है. सेकेंड, कंप्यूटर ने पूरे विश्व यानी कि वर्ल्ड के लोगों को जोड़ दिया है. इट हैज़ कनेक्टेड द एंटायर पीपल इन द वर्ल्ड. कंप्यूटर जीवन की अनिवार्य मूलभूत वस्तु बन गया है. कंप्यूटर हैज़ बिकम समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. कंप्यूटर मानव सभ्यता से
के सभी अंगों का अभिन्न अवयव बन चुका है. It has become just like an अवयव, an organ of a human body. So which is the correct answer? Any guess? Yes, it's the first answer, first option. कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना असंभव सी हो गई है. लाइफ विदाउट कंप्यूटर हैज़ बिकम इम्पॉसिबल. कल्पना यानी कि थॉट ऑफ अ लाइफ विदाउट कंप्यूटर हैज़ बिकम असंभव, इम्पॉसिबल. I know you find every option almost same and correct and all. I know, but it's sad, this is the correct answer and you have to understand that. See, this answer I can tell you is from the entire passage. You understand the entire passage only, then you will get this answer. You can't just find the word, like from very small age, from very young age, this is what we do. We look at the word and then we search for the word in the passage, right? Those days. Okay, second question. गद्यांश के अनुसार कंप्यूटर के महत्व के विषय में कौन सा विकल्प सही है? So regarding the importance of the computer, according to the गद्यांश, according to the passage, which sentence in the options are or is correct? First, कंप्यूटर काम के तनाव को समाप्त करने का उपाय है. सेकंड, कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है, यानी कि मानवीय भूल यानी कि ह्यूमन मिस्टेक्स निर्णायक रूप से वेरी नाइसली सुधार देता है, इम्प्रूव करता है कंप्यूटर. थर्ड, कंप्यूटर के आने से सारी हड़बड़ाहट दूर हो जाती है. ऑल द हेजिटेशंस आर रिमूव्ड विद द कमिंग ऑफ कंप्यूटर. फोर्थ ऑप्शन, मानव की सारी समस्याओं का हल कंप्यूटर से संभव है. ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कैन बी सॉल्व्ड विद कंप्यूटर. सो व्हाट इज विच इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज? Correct sentence. Yes, it's option number 2. कंप्यूटर कई मानवीय भूलों को निर्णायक रूप से सुधार देता है. Many human mistakes are removed with the help of computer. Third question. गद्यांश के अनुसार किस आवश्यकता ने कंप्यूटर में अपना निदान ढूंढ लिया है? अनियंत्रित कर्मचारियों को अनुशासित करने की. सो व्हाट ऑल आर द चेंजेस निदान ढूंढ लिया है? व्हाट आर द चेंजेस दैट हैज़ कम विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द पैसेज? अनियंत्रित कर्मचारियों को अनुशासित करने की. डिसिप्लिनिंग द अनकंट्रोलेबल काइंड ऑफ वर्किंग पीपल who don't work according to rules and all. We have disciplined them, that is computers have disciplined them. सेकेंड, अनियंत्रित गति के सुव्यवस्था देने की. अधिक से अधिक लोगों से जुड़ जागरण लाने की, यानी कि मेकिंग देम अवेयर और मेकिंग देम अवेकन्ड द पीपल हु आर वर्किंग. फोर्थ, अधिक से अधिक कार्य कभी भी व कहीं भी करने की. Okay, so the computer has brought a change according to fourth option that we can do any work anywhere. So according to passage, what is the change that computer has brought? Any guess? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अनियंत्रित गति को सुव्यवस्था देने की. दैट इज अनकंट्रोलेबल स्पीड. यू रिमेंबर वी रेड दिस लाइन, द अनियंत्रित गति इन द पैसेज. द uncontrollable speed has actually brought into suvyavastha, a very arranged manner with the help of a computer. So it's option 2. Fourth question. कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव क्यों होता था? विद द कमिंग ऑफ कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव क्यों होता था? लंबी लंबी गणनाएं करनी पड़ती, गलतियां के डर से कर्मचारी घबराए रहते, क्रिकेट मैचों में गलत निर्णय का खतरा रहता, मानवीय भूलों के कारण बड़ी दुर्घटनाएं होती थी. विच इज़ द करेक्ट आंसर? एनी गेस? कम ऑन थिंक. सी अर्लियर ओके, कंप्यूटर के प्रयोग से पहले अधिक तनाव क्यों होता था? वाई वॉज देयर अ लोनलीनेस? हाँ, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए जाते थे. ओके, सो बिफोर कमिंग ऑफ द कंप्यूटर, व्हेन डिड वी फेस लोनलीनेस? व्हेन वी बिकम वी आर द ओनली वन हु मेक द मिस्टेक्स, सो वी बिकम लोनली. बट विद द कमिंग ऑफ कंप्यूटर वी आर ऑलवेज लोनली नाउ, राइट? दैट इज वॉट वी गॉट फ्रॉम पैसेज. सो गलतियों के डर से कर्मचारी घबराए रहते. सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन. कंप्यूटर के बिना आज की दुनिया अधूरी है, क्यों? सो विदाउट अ कंप्यूटर टुडेज वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट. वाई?
सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत हैं। कंप्यूटर ही मानव एकीकरण का आधार है। कंप्यूटर ने सारी प्रक्रियाएं आसान बना दी है। कंप्यूटर द्वारा मानव सभ्यता अधिक समर्थ हो गई है। यस, इट्स करेक्ट। द फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, सारी व्यवस्था, उपकरण और मशीनें कंप्यूटरीकृत हैं. That is, it has become computerized. That was directly from the passage. It was there in the passage. Anyway, this is the answers to this first passage. If you see properly, the second, third, and fourth question has the answer as option 2. Okay, normally when these kind of questions come and we are getting continuously same option, like here it is option 2, we start feeling that no, maybe this is not 2, always 2 is coming repeatedly. I think it's not. So it's not like that. Maybe all the options are same. Anything can happen. Okay, so don't just make mistakes by thinking in that way. Anyway, so we have completed our first unseen passage. Now we are moving on to the second unseen passage. Okay, now this is a bit difficult passage, let me tell you. I just hope and pray that after I explain the passage and the answers, I hope and pray that the same one comes for you, or maybe very easy ones. Okay, so let's begin. Listen to me very carefully. पाठक आम तौर पर रूढ़िवादी होते हैं. नॉर्मली, यूजुअली, आम तौर पर पाठक यानी कि ऑडियंस रूढ़िवादी होते हैं. व्हाट इज़ रूढ़िवादी? कंजर्वेटिव. वे सामान्यतः साहित्य में अपनी स्थापित मर्यादाओं की स्वीकृति या एक स्वप्न जगत में पलायन चाहते हैं. सो हाउ डज नॉर्मली द पीपल बी? दे आर कंजर्वेटिव. ओके, दे यूजुअली साहित्य में, इन लिटरेचर, अपनी स्थापित मर्यादाओं की स्वीकृति. इन लिटरेचर, और यू कैन से इन साहित्य मीन्स लिटरेचर ओनली. So in literature, what happens is that we want everything that we feel, whatever our thoughts are, whatever our philosophies are, we want that to be accepted. Okay? Or what happens in people, स्वप्न जगत में, in dream world, they become पलायन चाहते हैं. पलायन यानी कि we want to run in a dream world. Okay, we want to live in a dream world. Either we want our rules to be accepted, or we want to live in a dream world. This is how normally conservative people are. साहित्य एक झटके में उन्हें अपने आसपास के उस जीवन के प्रति सचेत करता है जिससे उन्हें आंखें मूंद रखी थी. So साहित्य, that is literature or philosophy, it makes people to accept the reality. That is what is being said here. Okay, वो उसे जीवन में सचेत करता है. इट गिव्स वार्निंग टू पीपल. ओके, जिसमें उन्हें इट गिव्स वार्निंग्स अबाउट थिंग्स विच पीपल हैव एक्चुअली क्लोज्ड आइज टू. आंखें मूंद रखी हैं. वी हैव क्लोज्ड आवर आइज टू ऑल द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ. ओके, बट दोज रियलिटीज आर ओपन्ड बाय लिटरेचर. If you read something, you get to know whatever a poet writes, whatever a story writer, or whatever fiction or whatever people write, from that sometimes when we read, it opens our eyes. Okay. शुतुरमुर्ग अफ्रीका के रेगिस्तानों में नहीं मिलते, वे हर जगह बहुतायत में उपलब्ध है. शुतुरमुर्ग as actually name of an animal which they are saying, the writer is saying, अफ्रीका के रेगिस्तान में नहीं मिलते. We don't get in the deserts of Africa, but we get everywhere. वे हर जगह बहुतायत में उपलब्ध हैं. We get it everywhere in a very large number. प्रौद्योगिकी के इस दौर का नतीजा जीवन के हर गोशे में नकद फसल के लिए बढ़ता हुआ पागलपन है. ओके, सो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में, टुडे इज़ अ टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी. इन टुडेज वर्ल्ड, इफ वी सी शुतुरमुर्ग, why is शुतुरमुर्ग line come here? People can actually be very confusing and all. Shuturmurg is an animal which is just like very close to human being. Okay, and it also is something which is very fast from reality. Always Shuturmurg is an animal which is compared like that. That is why this line is given here. Otherwise it's of no importance. Okay, you don't have to give importance to that. We are moving on. प्रौद्योगिकी के इस दौर में, today's technology world का नतीजा जीवन के हर गोशे में, in every part of our life, नकद फसल के बढ़ता हुआ पागलपन. नकद फसल, कैश क्रॉप, और यू कैन से कैश,
money. We human beings are running after money. We have a पागलपन. We are mad behind money. और हमारे राजनीतिज्ञ आर पॉलिटिकल पीपल, सत्ता के दलाल यानी कि पावर ब्रोकन पीपल, व्यापारी, बिजनेस पीपल, नौकरशाह, एम्प्लॉयज़, सभी लोगों को इस भागदड़ में नहीं पहुंचने, जैसा दूसरे करते हैं वैसा करने, चूहा दौड़ में शामिल होने. So we are all, just like what others are doing, okay, we are also doing. There is a competition. We are running behind money. This is what we people do. Okay, चूहा दौड़, there's a race like a rat behind money. और कुछ ना कुछ हासिल कर लेने को जिए जा रहा है. We are living either for money or to हासिल करना, or to get something, one or the other. हम थक कर सांस लेना और अपने चारों ओर निहारना. We in order to just we become tired, just take a deep breath. Okay, look at all four directions. निहारना यानी कि देखना. हवा के पेड़ में से गुजरते वक्त पत्तियों की मनहर लय गतियों को, और see this is about nature, this is nothing else. हवा के पेड़, in the wind, when the leaves start flying and there is फूलों के जादुई रंग, there is a magical colors of flowers, फूली सरसों के चमकदार पीलेपन, खिले मैदान, a very big ground, everything about nature is described. Writer is saying that we are not giving importance for that. We are running behind one or the other, but we are not actually admiring the beauty of nature. हिमाच्छादित शिखरें, क्या कहते हैं, very long mountains, okay, beauty of them. समुद्र तट पर पछाड़. So this is all nature, nothing else. These lines are about nature. So writer is trying to say we are not admiring them, we are running behind money or something else. Moving on to next para. कुछ लोग सोचते हैं कि पश्चिम का आधुनिकतावाद और भारत तथा अधिकांश तीसरी दुनिया के नव औपनिवेशक चिंतन के साथ अपनी जड़ों से अलगाव. सो सम पीपल फील दैट ड्यू टू आधुनिकतावाद, ड्यू टू द न्यू मॉडर्न वर्ल्ड, अधिकांश तीसरी दुनिया के नव औपनिवेशक यानी कि colonial people, what others do we are also doing. So these things actually जड़ों से अलगाव, these things are separating us from जड़ यानी कि roots, यानी कि how our ancestors were, we are very far from them. Okay, we have brought, due to our lifestyle, we have become very different from them. व्यक्तिवादी अजनबियत में हमारा अनिवार्य बेलगाम धसाव. अजनबियत, we have become strangers to ourselves because of this run. अचेतन के बिंब, बौद्धिकता से विद्रोह, we have become very much into worldly desires that we are away from everything. ये घोषणा कि दिमाग अपनी रस्सी के अंतिम सिरे पर है, यथार्थवाद का निध्वंस, काम का निध्वंस यानी कि नाश, destruction. यथार्थवाद means reality, people who are practical, practical people have been destroyed. Okay, we are in run behind something, we have dreams, we have hopes, these are things happening. काम का ऐन्द्रिक सुख मात्र रह जाना और मानवीय भावनाओं का व्यावसायीकरण तथा निम्न स्तरीयकरण इस अंधी घाटी में आ फंसने की वजह है. So we have ऐन्द्रिक सुख, we have given our soul only one happiness, we have put into all this money and busy life and materialistic things. We don't give importance to manaviya bhavana. Okay, we are emotional beings, but we don't give importance to human emotions. Vyavasayikaran, there is business, there is nimna stariyakaran, means you start judging people on their status, on their money, you separate them on the basis of these things. So these are the things that are happening in this world, and that is why we are like in some Andhi Ghati. Ghati is a place where between mountains where water flow. Okay, Andhi Ghati means we are blind now. We have turned blind to all those emotions and nature and things. We are just blind. लेकिन वे भूल जाते हैं कि आधुनिकीकरण इतिहास की एक सच्चाई है. But we also forget that technology is a truth about today's life. Yes, it is there and we need it. कि नई समस्याओं को जन्म देने और विज्ञान को अधिक जटिल बनाने के बावजूद आधुनिकीकरण एक तरह से मानव जाति की नियति है. We do blame technology that this has made people like that and like this, but we forget
that technology is also something that has also manav jati ki niyati. It has also actually helped the human beings reach its niyati. Niyati यानी कि destiny. Today's destiny we have reached, it has computer in it, it has technology in it, and it is difficult. It has brought many bad things, but also it has brought many good things into this world. मेरा सुझाव है कि विवेकहीन आधुनिकता के बावजूद आधुनिकता की दिशा में धैर्यपूर्वक सुयोजित प्रयास होने चाहिए. So according to writer says a विवेकहीन, an intelligent person, what he'll do, okay, the modernism is there, development is there, technology is there, but we face it dhairyapurvak, whatever comes, okay, we will stick to our philosophy, our ideas, and we'll move forward. एक आलोचक किसी नाली में भी झांक सकता है पर वह नाली निरीक्षक नहीं हो जाता. तो राइटर सेज दैट ओके, a thoughtful person can actually what to say, we peep into a nali यानी कि a very big you can say a water body, okay, a very big water body, okay, we really look into it, okay, but you don't become a nali nirikshak, you don't become a security to that place. You look, but you're not a security to that place. Okay, so we are also living in this world of technology, but we don't have to be fully into it. We can also admire other things which are surrounded by us. लेखक का कार्य दुनिया को बदलना नहीं समझाना है. The writer is not trying to change the world or their thoughts, but making us understand. साहित्य क्रांति नहीं करता. साहित्य यानी कि लिटरेचर डजेंट क्रिएट एनी क्रांति. क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन. वह मनुष्यों का दिमाग बदलता है, चेंजेस द माइंड ऑफ पीपल, और उन्हें क्रांति की आवश्यकता को प्रति जागरूक बनाता है. एंड इट ऑल्सो मेक्स अस अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ revolution. That is whatever here the technology is a revolution, because it has pros, it has cons, positive and negative things, but the writer, the literature makes human beings understand what is being said, what is being seen, what is going around the world. Everything is being clear with the help of sahitya. Oh, now this is this passage, okay. I know it was very difficult for me myself to decode this passage to make you understand. I don't know how much you have understand actually, but this is what happens. One passage is easy, then the other one is difficult. Okay, so let's move on to the answers. First question, गद्यांश में शुतुरमुर्ग की संज्ञा किसे दी गई है? This noun शुतुरमुर्ग, it is used for whom? First, लेखक जो संसार को समझना चाहता है. सेकेंड, राजनीतिज्ञ जो अपने स्वार्थ साधना चाहता है. थर्ड, पाठक जो सपनों की दुनिया में रहना चाहता है. फोर्थ, नौकरशाह जो दूसरों जैसा बनने को होड़ में शामिल है. टेल मी हु इट इज. यस, इट्स ऑप्शन 3, पाठक यानी कि ऑडियंस और द रीडर ऑफ द लिटरेचर. वी आर बीइंग एड्रेस्ड एज शुतुरमुर्ग. सेकेंड क्वेश्चन, आधुनिकता की दिशा में सुयोजित प्रयास क्यों होने चाहिए? वाई देयर शुड बी व्हाट टू से ऑलवेज अ कंटिन्यूअस स्ट्राइव from our side in modern technological world. Options, इससे जीवन सुगम हो जाएगा तथा मानव प्रकृति का आनंद ले सकेंगे. नई समस्याओं को जन्म लेने के पहले ही रोका जा सकेगा. थर्ड, आधुनिक होने की प्रक्रिया सदा से मानव सभ्यता का अंग रही है. फोर्थ, इससे विज्ञान सरल हो, अधिक मानव कल्याणी हो सकेगा. कल्याणी यानी कि वेलफेयर. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इट्स ऑप्शन 3, आधुनिक होने की प्रक्रिया सदा से मानव सभ्यता का अंग रही है. सो ऑलवेज द मॉडर्न वर्ल्ड, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इट हैज़ रिमेन्ड एज एन अंग, एज अ बॉडी पार्ट विथ ह्यूमन बीइंग. ओके. थर्ड क्वेश्चन, नकद फसल के लिए बढ़ता हुआ पागलपन से क्या तात्पर्य? सो फॉर द कैश क्रॉप, फॉर मनी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ पागलपन, मैडनेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? लोग तुरंत व अधिक से अधिक लाभ कमाना करना चाहते हैं. लोग प्रकृति को समय नहीं देना चाहते. लोग थके हुए हैं पर विश्राम नहीं करना चाहते. लास्ट ऑप्शन, लोग भौतिकवादी तथा अमीर लोगों की नकल करना चाहते हैं. एनी गेस? ऑप्शन 1, लोग तुरंत व अधिक से अधिक लाभ कमाना करना चाहते हैं. Today people are in a very great speed and very fast. They want more and more money, and that is why the cash crop word was used in this passage.
4th क्वेश्चन, पाठक साहित्य से आमतौर पर क्या अपेक्षा रखते हैं? द पीपल, द रीडर्स और द ऑडियंस, व्हाट अपेक्षा, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ देम फ्रॉम साहित्य? ऑप्शन, साहित्य को हमारे मन की बात कहनी चाहिए, साहित्य को संसार को यथावत समझना चाहिए, साहित्य तनाव कम करने वाला होना चाहिए, साहित्य को जीवन कौशलों व मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए. व्हाट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन एज अ रीडर अकॉर्डिंग टू पैसेज? इट्स ऑप्शन 2, साहित्य को संसार को यथावत समझना चाहिए. साहित्य, दैट इज लिटरेचर, हैज़ टू अंडरस्टैंड द यथावत, the correctness, the reality of the world, people in the world. That is what we expect. 5th question, लेखक के अनुसार साहित्य क्या कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? So what does साहित्य influence us to do? फर्स्ट ऑप्शन, लोगों को यथार्थ से अवगत करा बदलाव के लिए. सेकंड, लोगों को जीवन की समस्याओं को भुला आगे बढ़ते जाने के लिए. लोगों को यथार्थवाद का विध्वंस करने के लिए. लोगों को भावनाओं व इंद्रिक सुख से ऊपर उठ कार्य करने के लिए. विच इज़ द करेक्ट आंसर? इट्स ऑप्शन 1, लोगों को यथार्थ से अवगत करा बदलाव के लिए. सो द साहित्य, व्हाट इज इट इज ट्राइंग टू डू? यथार्थ, रियलिटी, इट इज़ मेकिंग अस अवेयर, अवगत कराकर बदलाव के लिए. इट इज़ ट्राइंग टू मेक चेंजेस इन द वर्ल्ड. Okay, so we are done with the first and second unseen passage. Okay. Oh my God, I am like totally tired. Okay, so let's move on to the next one. Okay. पशु को बेटा, यदि आप इस गद्यांश का चयन करते हैं तो कृपया उत्तर पुस्तिका में लिखें कि आप प्रश्न संख्या 2 में दिए गए गद्यांश 1 पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्मॉल पैसेज. पशु को बांध कर रखना पड़ता है क्योंकि वह निरकुश है. चाहे जहाँ तहाँ चला जाता है, इधर उधर मुँह मार देता है. क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा? पशु के गले की रस्सी को एक हाथ में पकड़कर और दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर जहाँ चाहो हाँक कर ले जाओ. जिन लोगों को इसी प्रकार हाँके जाने का स्वभाव पड़ गया है, जिन्हें कोई भी जिधर चाहे ले जा सकता है, काम में लगा सकता है, उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा. सो दिस इज़ अबाउट एन एनिमल, पशु. ओके, सो पशु को बांध कर रखना पड़ता है. वी हैव टू टाई द पशु एंड कीप, अदरवाइज इट गोज़ हियर एंड देयर, जहाँ तहाँ जाता है. क्या मनुष्य को भी इसी प्रकार दूसरों का बंधन स्वीकार करना चाहिए? सो द क्वेश्चन इज, डज इवन ह्यूमन बीइंग, जस्ट लाइक अ पशु, जस्ट लाइक एन एनिमल, डज ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हैव टू बी टाइड इन डिफरेंट रिलेशन? क्या इससे उसमें मनुष्यत्व रह पाएगा? विल देयर बी ह्यूमैनिटी इन पीपल विद दिस? पशु के गले की रस्सी को एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ में एक लकड़ी लेकर जहाँ जहाँ हाँक कर ले जाओ. What happens is, Pashu, we have the rope of the animal in one hand, in the other hand we have a stick with which we beat the animal so that the animal takes us wherever we want. So is this right in human relations also? जिन लोगों को इस प्रकार हाँके जाने का स्वभाव पड़ गया है, जिन्हें कोई भी जिधर ले जा सकता है, काम में लगा सकता है, उन्हें भी पशु ही कहा जाएगा. So if there is a control of other people on us, okay, and we are also pulled to different places, then there is no difference between us and animals. पशु को चाहे कितना मारो, चाहे कितना उसका अपमान करो, बाद में खाने को दे दो, वह पूंछ और कान हिलाने लगेगा. Animals, how much ever you hit them, okay, when you give them food, they come behind you. ऐसे नर पशु भी बहुत से मिलेंगे जो कुचलने और जाने और अपमानित होने पर भी ज़रा सा वस्तु मिलने पर झट संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हैं. कुत्ते को कितना ही ताड़ना देता है, बाद उसके सामने एक टुकड़ा डाल दो, वह झट से मारपीट को भूल कर उसे खाने लगेगा. इवन डॉग्स आर लाइक दैट, दे जस्ट फॉरगेट यू हिट देम. यदि हम भी ऐसे ही हैं तो हम कौन हैं? इसे स्पष्ट कहने की आवश्यकता नहीं. पशुओं में भी कई पशु मारपीट और अपमान हो नहीं सकते. वे कई दिन तक निराहार रहते हैं. कई पशुओं ने तो प्राण त्याग दिए हैं, ऐसा सुना जाता है. इस प्रकार
के पशु मनुष्य कोटि हैं, उनमें मनुष्यत्व का समावेश है, यदि ऐसा कहा जाए तो कोई अत्युक्ति ना होगी. So some animals but are there when they get hit, whatever you give them they won't come. So they are very close to human nature because human beings are like that. And this is a very small passage. Let's look at its answer. कई पशुओं ने प्राण त्याग दिए क्योंकि उन्हें विद्रोह करने की अपेक्षा प्राण त्यागना उचित लगा. उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा. तिरस्कृत यानी कि वो इग्नोर देम, दे डिडंट लाइक दैट लाइफ. थर्ड, वह ये शिक्षा देना चाहते हैं कि प्यार मारपीट से अधिक कारगर है. दे वॉन्ट टू मेक अस लर्न अ लेसन दैट लव इज़ मोर बिगर दैन मारपीट और बीटिंग्स, ऑल द बीटिंग्स यू डू. वह ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों को उनकी आवश्यकता अधिक है, ना कि उन्हें लोगों की. द एनिमल्स आर ट्राइंग टू शो दैट वी ह्यूमन बींग्स नीड देम मोर and not they need us. Okay, so why does the pashu do such things? कई पशुओं को प्राण त्याग दिए, ने प्राण त्याग दिए. So why do they self sacrifice is the question. The correct answer is option 2. उन्हें तिरस्कृत हो जीवन जीना उचित नहीं लगा. So they sacrifice themselves because they are ignored, they are alone, and they felt when we are ignored nobody wants us, let's die for them. We don't want to live a life like that. That's the option 2. सेकेंड, बंधन स्वीकार करने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वॉट इज़ द चेंजेस दैट कम्स इन ह्यूमन बींग्स वंस वी एक्सेप्ट रिलेशंस? ओके, ऑप्शंस. मनुष्य सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से कम स्वतंत्र हो जाएगा. सोशली एंड पर्सनली वी बिकम वी हैव लेस फ्रीडम दैन अर्लियर वंस यू आर टाइड इन अ रिलेशन. सेकेंड, मनुष्यत्व में व्यक्तिगत इच्छा व निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा. इन ह्यूमैनिटी the व्यक्तिगत इच्छा, the privacy or the personal wishes and decisions will stop, will decrease. थर्ड, मनुष्य बंधे हुए पशु समान हो जाएगा. just like a tied animal, human beings also become like them. फोर्थ, मनुष्य की निर्कुशता में परिवर्तन हो जाएगा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. मनुष्यत्व में व्यक्तिगत इच्छा व निर्णय का तत्व समाप्त हो जाएगा. द पर्सनल डिसीजन, पर्सनल चॉइस, एवरीथिंग विल जस्ट स्टॉप once you are in a relation, because you have a responsibility towards them also. You have to look at their wishes also. There will be no personal wish, so it ends with a relation. थर्ड क्वेश्चन, मनुष्यत्व को परिभाषित करने हेतु कौन सा मूल्य अधिक महत्वपूर्ण है? So what is very important for humanity? स्वतंत्रता, न्याय, शांति, प्रेम. What do you think? Yes, it's first option, स्वतंत्रता, freedom. फोर्थ, गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा, वेट अ मिनट, कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? ओके, गद्यांश के अनुसार कौन, फोर्थ क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार कौन सी उद्घोषणा की जा सकती है? सभी पशुओं में, मीन्स व्हाट वी कैन अनाउंस ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज. फर्स्ट, सभी पशुओं में मनुष्यत्व है. सभी मनुष्यों में पशुत्व है. मानव के लिए बंधन आवश्यक है. मान अपमान की भावना केवल मानव ही समझता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. मानव के लिए बंधन आवश्यक नहीं है. फॉर ह्यूमन बींग्स रिलेशंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द पैसेज. फिफ्थ वन, गद्यांश में नर और पशु की तुलना किन बातों को लेकर की गई है? वॉट इज़ द कंपैरिजन मेड बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स इन दिस पैसेज? पिटने की क्षमता, पूंछ कान आदि को हिलाना, बंधन स्वीकार करना, लकड़ी द्वारा हाँके जाना. Yes, it's option 3, बंधन स्वीकार करना. The similarity is that we also accept relations, animals also accept relations, and when then we are not accepted, we throw them. Even animals, when not accepted, they also just leave them. Okay, next passage. Oh my God, so many passages. I'm tired. Like really, I need a break. My eyes are paining, and my mouth also. ओके, नेक्स्ट, व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता.
जितने बड़े पैमाने पर मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाना गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वो हो रहा है। ये कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देते हैं। दिस इज अबाउट द आदर्श और आइडियलिज्म। या दिस इज अबाउट आइडियलिज्म। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। वी आर नॉट ऑलवेज आइडियलिस्टिक ह्यूमन बींग्स। जितने बड़े पैमाने पर मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। सो in what amount or what quantity there is development of human beings can happen, in that quantity itself many other things are also increasing. लक्ष्य की बात भूल गए। We have forgotten what our aim is. लक्ष्य यानी कि aim. What is our aim? We forgot. आदर्शों का मजाक का विषय बनाया गया। And we have also made the topic of idealism like a मजाक, like a joke. संयम को दकियानुसी मान लिया गया। पर मीन्स व्हेन यू बिकम अ लिटिल पोलाइट, दैट इज ऑल्सो मेड अ जोक अबाउट। परिणाम जो होना था वो हो गया। रिजल्ट व्हाट वी सी हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ये कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देंगे। या दैट इज बिकॉज टुडेज पीपल हैव चेंज्ड. They make fun of idealism. They don't have any importance towards love for nation or anything. But the writer is saying that but because of these things, what love and life was there earlier in Indians. भारतवर्ष के लोग में जो idealism was there earlier, that has been highlighted today, because today there is no idealism. It has become a joke. So what was there earlier, that has become important now, that has become highlighted. I know this is very boring and maybe you're not even able to make out what I'm saying, but this is there for you and as much as possible I'm trying to explain to you. Okay. भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है. The India is actually seeing कानून, law, just like a dharma now, like a religion. On the basis of religion only law is also seen. आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है. Today we see earlier there was a relation between law and religion, but today law and religion has become two different things. धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता. We cannot cheat religion. कानून को I'm sorry for that. Yeah, कानून को दिया जा सकता है, but we can cheat law. This is how people feel. We cannot cheat religion, but we can cheat law. But earlier it was not like that. Earlier religion and law was given equal importance. Both were important. Justification was there for both. But today people feel we can cheat law, but we cannot cheat religion. यही कारण है कि जो धर्म भीरू हैं वे भी त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते. दैट इज़ वाई जो धर्म भीरू यानी कि जो फेक रिलीजियस होते हैं ना, जो दे आर नॉट रियली रिलीजियस, दे जस्ट फेक. व्हाट दे डू रिलीजन एज अ बिजनेस. दे गेट मनी फ्रॉम दैट बिकॉज दे नो दैट पीपल विल नॉट चीट रिलीजन. People will not do such things, will not fake with religion. So those people who are fake religious, they take advantage out of such people. Understood? Because we normal people, we don't cheat religion. Those bad people, they take advantage out of us. Clear? इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकता है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहो, भीतर बाहर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है. वी कैन से दैट इन द टॉप क्लास पीपल वॉट एवर हैपन्स, बट बिलो दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग. दीज आर ट्रू थिंग्स हैपनिंग. वी आर बीइंग चीटेड इन द नेम ऑफ रिलीजन बाय दोज इररिलीजियस पीपल. कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है. रिलीजन इज़ बिगर देन लॉ. दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग स्प्रेड. सॉरी. अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और
आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं. इवन टुडे सर्विंग, सर्विस, ऑनेस्टी, ट्रूथ, एवरीथिंग इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. वे दब अवश्य गए हैं, दे हैव दब गए, वो दब गए हैं, दे हैव डिक्रीज्ड ऑफ कोर्स, लेकिन नष्ट नहीं हुए, बट दे हैव नॉट फुली गॉन फ्रॉम द वर्ल्ड. आज भी ये मनुष्य से प्रेम करता है. दीज थिंग्स लव्स ह्यूमन्स इवन टुडे. महिलाओं का सम्मान करता है. ये गिव रिस्पेक्ट टू लेडीज़. झूठ और चोरी को गलत समझता है. फॉल्स, झूठ यानी कि झूठ को क्या कहते हैं, या लाइज एंड चोरी, थेफ्ट इज़ ऑल्सो रॉन्ग टुडे. दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है. हर्टिंग अदर्स इज सेट टू बी पाप, यानी कि सेट टू बी अ sin today. So though all these things are happening, even today there are these values in the world. Of course they are less, but they are there. Done with the last passage. Oh my God, I just hope that any one of these passages at least comes for your exam, so that my मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं हो जाता है ना. ओके, कम ऑन. फर्स्ट क्वेश्चन. मनुष्य ने आदर्शों को मजाक का विषय किस कारण बना लिया? कानून, उन्नति, लोभ, धर्म, भीरुता. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, लोभ ने. ओके. सेकंड, धर्म एवं कानून के संदर्भ में भारत के विषय में कौन सा कथन सबसे अधिक सही है? इन लॉ एंड थिंग्स, इन लॉ एंड रिलीजन अकॉर्डिंग टू इंडिया व्हाट इज़ करेक्ट? फर्स्ट, महिलाओं का सम्मान धर्म तो है पर कानून नहीं है. धर्म और कानून दोनों को धोखा दिया जा सकता है. भले लोगों के लिए कानून नहीं चाहिए और बुरे इसकी परवाह नहीं करते. भारत का निचला वर्ग कदाचित अभी भी कानून को धर्म के रूप में देखता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. भले लोगों के लिए कानून नहीं चाहिए और बुरे इसकी परवाह नहीं करते. गुड पीपल दे डोंट वांट लॉ एंड बैड पीपल दे जस्ट डोंट इवन केयर अबाउट लॉ. दैट इज द ऑप्शन 3. दैट इज द करेक्ट सेंटेंस. थर्ड वन, भारतवर्ष में सेवा और सच्चाई के मूल्य डैश रेखांकित के लिए विकल्प छांटिए. यू हैव टू फिल द ब्लैंक. मनुष्य की समाज पर निर्भरता में कमी होने के कारण इनमें ह्रास हुआ है. जीवन में उन्नति के बड़े पैमाने के कारण छिप से गए हैं. न्यायालयों में कानून की सत्याभासी धाराओं में उलझ कर रह गए हैं. परमार्थ के लिए जीवन की बाजी लगाने वाले ये सिद्ध करते हैं कि ये व्यक्ति के मन को अभी भी नियंत्रित कर रहे हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. जीवन में उन्नति के बड़े पैमाने के कारण नहीं, कहीं छिप से गए हैं. दिस इज देयर इन द पैसेज इटसेल्फ. बड़े पैमाने के कारण कहीं छिप गए हैं जीवन की उन्नति. Okay, whatever development is there, it is hidden somewhere because of the other things that is there around the world. Fourth question. I'm not explaining each and every option, only the correct option because I'm totally tired. Fourth question. भारतवर्ष का बड़ा वर्ग बाहर भीतर कदाचित क्या अनुभव कर रहा है? Big वर्ग, a big part of people in the world, in India, what are they experiencing today? धर्म कानून से बड़ी चीज़ है, कानून धर्म से बड़ी चीज़ है. संयम अशक्त और अकर्मणीय लोगों के लिए है. आदर्श और असूलों से यथार्थ जीवन असंभव है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. धर्म कानून से बड़ी चीज़ है. दिस इज ऑल्सो देयर डायरेक्टली इन द पैसेज. रिलीजन इज बिगर देन लॉ. फिफ्थ क्वेश्चन. निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए. उन्नति के संदर्भ में जीवन मूल्यों की प्रासंगिकता. मानवीय चित्त. यू नीड अ करेक्ट शीर्षक, टाइटल फॉर द पैसेज. सेकेंड, मानव चित्त के आकर्षण निवारण में आदर्शों की भूमिका. समाज कल्याण हेतु धर्म और कानून का सह अस्तित्व. धार्मिक व सार्वभौमिक मूल्यों का एकीकरण. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. उन्नति के संदर्भ में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट जीवन मूल्यों की, वैल्यूज ऑफ लाइफ, प्रासंगिकता, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ वैल्यूज इवन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट in our country or in our lives or around the world. What is the correct title for that? Okay, oh my God, we are done with the passages. I'm also totally done.
Let's move on to the next question. I think grammar I'll not explain because you already know and I've done many videos on this. Why? Because I'm totally tired, my children. I'm so sorry, but I just can't explain. You go, okay, you can't go through because I'll try to upload this file down, okay, below in the comment box or somewhere. Okay, I can only try, yeah, but I'll try. Okay. Okay, so we'll move on to. Oh, okay. Only these many are there. Okay, then no problem. I think I'll just explain to you, yeah? Maybe you people will feel sad that I didn't explain. But I'm totally tired actually. Okay, wait, huh? Wait, huh? Okay, I'll give you the answers. I'll explain full. Okay, no problem. तंतारा बहुत बलशाली भी था. रेखांकित में पद कौन सा है? Yes, it's option number 3, विशेषण पद. I'm not explaining why because you must be knowing. I've already done a video on all these things. Second, वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं. वाक्य में क्रियापद बंद. It's option 3, सुनते रहते हैं. बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया. वाक्य में रेखांकित पद बंद. बंगले के पीछे, इट्स विशेषण पद बंद. ऑप्शन 3. वाक्य डैश से बनता है. स्वर से, व्यंजन से, शब्द से या फिर पद से. किससे बनता है वाक्य? शब्द से. वेरी गुड. नेक्स्ट, मैं तेजी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा. कौन सा पद बंद है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या फिर क्रिया? कम ऑन टेल मी. यस, इट्स क्रिया विशेषण. वेरी गुड. फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों. ओके. बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं. वाक्य रचना की दृष्टि से है. बच्चे आए हैं किस रचना की? ओके. और खेल रहे हैं. विच वन इज इट? यस, इट्स संयुक्त वाक्य. और राम घर गया, उसने माँ को देखा. यू हैव टू कन्वर्ट टू संयुक्त वाक्य. विच वन इज इट? यस, इट्स ऑप्शन 2. राम घर गया और उसने माँ को देखा. थर्ड, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? आई एम नॉट रीडिंग द ऑप्शंस नाउ. आई एम टोटली टायर्ड. यू जस्ट रीड इट फॉर योरसेल्फ एंड टेल द आंसर. इट्स ऑप्शन 3. सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है. की. ओके. फोर्थ, संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह बाजार पुस्तक खरीदने गया. वह बाजार से पुस्तक खरीद लाया. यस, विच वन इज इट? यू रीड इट यार, आई फॉरगेट. इट्स ऑप्शन 4. वह बाजार गया और पुस्तक खरीदा. और संयुक्त. फिफ्थ, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त को सरल वाक्य में बदलने को कहते हैं डैश. वाक्य निर्माण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य प्रक्रिया, वाक्य संश्लेषण. यस, इट्स ऑप्शन 2, वाक्य रूपांतरण. सो इजी, राइट? ओके. आई थिंक दैट्स इनफ. आई एम टोटली टायर्ड. व्हाट इज दिस? महावीर. अच्छा, समास. यू विल डू इट ऑन योर ओन, राइट? टोटली टायर्ड चिल्ड्रन. ओके. समास. महावीर शब्द में कौन सा समास है? इट्स ऑप्शन 1, महान है जो वीर, कर्मधारय. सेकेंड, वन गमन समस्त पद का विग्रह कौन सा है? ऑप्शन 3, वन को गमन, वन को गया हुआ, वन यानी कि फॉरेस्ट. थर्ड, पति है जो अंबर, सॉरी पीत है जो अंबर. देखा, मैं टोटली टायर्ड हूँ. पीत है जो अंबर, पीतांबर, एवरीबडी नोज, राइट? ओके. ऑप्शन 3, यस. गुरु दक्षिण शब्द के सही समास विग्रह. गुरु से दक्षिण, गुरु का दक्षिण, गुरु की दक्षिण, गुरु के लिए दक्षिण. ऑप्शन 4, गुरु के लिए दक्षिणा, तत्पुरुष समास. फिफ्थ वन, दिनचर्या समस्त पद का विग्रह. दिन की चर्या, दिन में आराम, दिन में चलना, दिन भर खाना. ऑफ कोर्स इट्स दिन की चर्या, फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, निम्नलिखित चारों भागों के उत्तर दीजिए. ओके. पढ़ाई में मेहनत कर. ओके.
पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूँ। ऑप्शन 4 पैरों में खड़ा होना, मुहावरा। ओके, नेक्स्ट विपत्ति में उसकी अकल डैश उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चकरा जाना। थर्ड, ऑप्शन 3 चकरा जाना। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश है। ऑप्शन 1 बाजी लगा देते हैं। फोर्थ, गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। ऑप्शन 2 पेट काट कर। ओके, नेक्स्ट इज फ्रॉम कर चले हम फिदा। नाउ दिस इज अ सीन पैसेज, वी कैन से इट्स नॉट अ पैसेज ऑफ कोर्स, इट्स अ सीन पोएम, सॉरी। Oh my god, I just remembered I didn't switch off the fan when I was explaining. I'm so sorry. I think it's going to be a disturbance for you all in the video. Now, I'm not going to record this video again. But I'm so sorry, okay? Otherwise, I usually always switch it off. I don't know. It must not be clear now. Anyway, let me continue. Okay. This is just to help you out. Okay. Kar chale hum fida jano tan sathiyo. I'm not reading the lines. You know the lines. You can see in the textbook, right? First question. सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। पंक्ति में सर किसका प्रतीक है? ऑप्शन 1 स्वाभिमान। नेक्स्ट, पद्यांश में बांकपन शब्द प्रतीक है। व्हाट इज बांकपन? ऑप्शन 4 बेमिसालपन मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट, धरती के दुल्हन बनने से तात्पर्य है, कम ऑन टेल मी। इट इज ऑप्शन 3 बलिदान से गौरवान्वित हुई है, बलिदान से, सैक्रिफाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पर कफन बांधने का क्या अर्थ है? बलिदान के लिए तैयार होना। ऑप्शन 1, दैट इज वेरी इजी। नाउ देयर इज अ सीन पैसेज, दिस इज फ्रॉम हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। दिस इज फ्रॉम जैन की देन। या यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। अंडरस्टूड? या जैन की देन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस। पैसेज विल बी देयर इन योर टेक्स्ट बुक। गद्यांश में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बताया गया है? व्हाई इज मानसिक रोग इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज? ऑप्शन 2 तेज रफ्तार से दौड़ते दिमाग का तनाव। सेकेंड क्वेश्चन, जीवन की रफ्तार बढ़ने का अर्थ क्या है? ऑप्शन 3 तीव्र गति से कार्य का निष्पादन करना। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन, दोनों ही काल मिथ्या हैं, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन 3 अगेन, व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान पर रहता है। ओनली ऑन टुडे, एट प्रेजेंट वी कैन कंट्रोल। येस्टरडे वी कांट कंट्रोल, टुमारो वी कांट कंट्रोल। फोर्थ क्वेश्चन, दिमाग पर स्पीड का इंजन क्यों लगाया जाता है? इट्स अगेन ऑप्शन 3 दिमाग की स्पीड बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अनंत काल के विस्तृत होने का क्या कारण है? अनंत काल, a long number of days and years, time, very विस्तृत time. So अनंत काल विस्तृत होने का क्या कारण है? Why is it like that? Why is it vast? Again it's option 3, लेखक केवल वर्तमान के बारे में ही सोच पा रहा है, because we are thinking, लेखक is thinking only about today. That is why we feel there is a lot of time now. If you think about past, or if you think about future and you're crying, or you have anxiety, then what happens? You feel there is no much time. But if you think about present, there's always time in your life. Okay, next is from Tantara Vamiro, and I think this is the last one, and I just hope this is the last one. I can't do anything more. वामिरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। पैसेज, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम तंतारा वामिरो, गद्यांश में क्रोध और अग्नि की तुलना क्यों की गई है? जस्ट रीड आउट द ऑप्शंस। इट्स ऑप्शन 2, आंसर इज ऑप्शन 2, क्रोध और अग्नि दोनों ही पर नियंत्रण कठिन है, बिकॉज एंगर एंड फायर, क्रोध और अग्नि, नियंत्रण, कंट्रोल ऑन देम इज कठिन, डिफिकल्ट। सेकेंड क्वेश्चन, तंतारा को गुस्सा क्यों आया? इट्स ऑप्शन 2, उसे विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था। शी वॉज एंग्री अबाउट द ट्रेडिशन अबाउट मैरिज।
ट्रेडिशनल बिलीफ अबाउट मैरिज. थर्ड क्वेश्चन, वामिरों की माँ को दृश्य अपमानजनक क्यों लगा? ऑप्शन 3, माँ गांव की परंपरा से बंधी थी. शी हैड द बिलीफ, ट्रेडिशनल बिलीफ ऑफ द विलेज. फोर्थ क्वेश्चन, तंतारा वामिरा कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान इंगित कराती है? रीड आउट द ऑप्शंस. इट्स ऑप्शन 3, विवाह के परंपरागत नियम. फिफ्थ क्वेश्चन, आग बबूला हो उठना मुहावरे का अर्थ? फर्स्ट वन, राइट, फर्स्ट ऑप्शन, यस, अत्यधिक क्रोध आना. बस अब हमारे पास यू हैव द राइटिंग सेक्शन विच आई कांट डिस्कस ओवर हियर. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड writing section in my other videos, but I'll try to upload. I cannot assure you. I'll try to upload discussing on some points on some of the questions of writing section. I'll try to do it later. Anyways, we are done with this video of sample paper. Oof, I'm tired. I know watching this maybe you're also tired, but just don't be tired. Be alert. Your board exams are going on. All the best. All my prayers and wishes to all of you. Okay, keep supporting my channel also. Even the 10th standard you're going to passing out. Please don't forget still to share my channel with the coming generation, whoever you know, okay, who are passing or coming to 9th and 10th standards. All the best to you all. I'm sure you're going to do very well in your exams. Bye bye. Love you all.